Hello students, good morning. Welcome to our online classes. In this video we will be doing chapter number 2, name, kind of sentences. Okay, and earlier in 6th 7th class you have already read about the sentences. Okay, so what is a sentence? A sentence is a group of clauses or words conveying a complete meaning. So what is a sentence? और यू कैन से अपन कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं एक लाइन को जिसको पढ़ के अपन को एक कंप्लीट मीनिंग मिले, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. अ सेंटेंस कुड बी फॉर्म्ड विदाउट सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, बट नो सेंटेंस कुड बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट कि एक सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब इम्पोर्टेंट है. उस सेंटेंस में माइट भी कभी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बट यू विल फाइंड वर्ब इन ईच एंड एवरी सेंटेंस. अ सेंटेंस मे मेक्स अ स्टेटमेंट. सो वी विल रीड अबाउट ये जो चैप्टर है, इट इज़ अबाउट कि सेंटेंस को अपन कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में देखेंगे, sometimes we will see in the form of question, sometimes we will see in the form of a wish, a prayer, or might be a question. So first line क्या है? A sentence may makes a statement. So statement means do not get confused between sentence and statement. Sentence के टाइप्स ही हैं, माइट बी स्टेटमेंट, माइट बी क्वेश्चन, माइट बी विश और कमांड. वील बी सीइंग दिस इन द चैप्टर. तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? अ स्टेटमेंट इज समथिंग इज सेड और रिटन. स्टेटमेंट और क्या है? स्टेटमेंट डू नॉट आस्क क्वेश्चन. ओके, अपन सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को अपन चेंज करते हैं या उसकी फॉर्म चेंज करते हैं टू मेक अ क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट को आप नहीं चेंज कर सकते इनटू क्वेश्चन. स्टेटमेंट इज व्हाट इज दैट? स्टेटमेंट इज समथिंग दैट इज सेड और रिटन. इट गिव्स facts, you can say. Statement generally gives facts or it makes request or command. So let's continue from the book. It may take, it means sentence may take the form of question or it may expresses a command or result. It can take the form of exclamation or it may take the form of wish or prayer. जो कि मैंने आपको बताया, राइट, कि स्टेटमेंट की फॉर्म चेंज करते हुए अपन ये सारी फॉर्म्स को सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं टू मेक अ कमांड, टू मेक एन एक्सप्लेनेशन और टू मेक अ क्वेश्चन. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज assertive sentence. What is assertive sentence? A sentence that makes a statement or an assertion is called assertive or declarative sentences. Okay, so statement is या तो आप statement कह लो उसको या assertion. What is the meaning of assertion? You can write down in your textbook. Assertion means fact or belief which someone is stating with a force, or you can say stress. Someone is giving stress on facts or belief. assertion का मीनिंग ही यही होता है कि कोई भी चीज़ को अपन स्ट्रेस दे के बोलें तो वो क्या है? एक स्टेटमेंट कहलाएंगे. सो a sentence that makes a statement or assertion is called assertive or declarative. आप might भी उनको assertive sentences भी कह सकते हो और declarative sentences भी कह सकते हैं. An assertive sentence can be affirmative or negative sentence. Affirmative means positive,
negative sentence. Let's see the example. Some hunters hunt wild animals and full stop. Yellow में आप here you can see it is written कि आप इन स्टेटमेंट या इन सेंटेंस के बाद आप फुल स्टॉप लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है. इफ़ यू डोंट पुट अ फुल स्टॉप दिस मीन्स that sentence will continue further. Full stop means that you are ending your statement or assertion. Second example, good students never disobey their teachers. All that student is not gold. Our team could not play well. So in all these examples, so how can you judge ki this is affirmative and negative? You can see in the right side of your textbook that it is written first wala affirmative and you will get confused कि hunters की बात हो रही है, hunting की बात हो रही है. Why it is not negative? Negative doesn't mean कि वो आपको negative result और negative कुछ नेगेटिव बताए. नेगेटिव मीन्स जहाँ पे भी आप नेगेटिव वर्ड्स देखोगे. इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू सी नेवर. सो नेवर इज नेगेटिव वर्ड. सो वेर एवर यू सी नेगेटिव वर्ड इन सेंटेंस सो इट वुड बी अ नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव असर्शन. सो सेकेंड क्या था कि गुड स्टूडेंट नेवर डिसओबेज टीचर. तो ये जो मीनिंग है, मीनिंग इज़ पॉजिटिव बट इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है. दैट इज़ वाई इट इज़ स्टेटेड एज नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस. एंड येलो अगेन कि वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. आप सेंटेंसेस के बीच में देखोगे कॉमा लगा है, कहीं आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देखोगे या इन शॉर्ट को इनको कहेंगे पंक्चुएशन मार्क्स. जितने भी आप मार्क्स बीच में देखोगे उनको पंक्चुएशन मार्क करते हैं. बट अगर स्पेसिफिकली असर्टिव सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है, यू विल सी फुल स्टॉप एंड यू विल सी कि वो जो स्टेटमेंट है कि कुछ फैक्ट्स या बिलीव्स बता रहे हैं या नहीं. सो बाय फॉलोइंग दिस रूल कि फर्स्ट यू विल फाइंड फुल स्टॉप, then you will see that there is any fact, belief, so that you can easily get to know that is assertive sentences. We'll take more examples of assertive sentences. So let's take a look. First, Robin is a brilliant student in the classroom. तो ये क्या बता रहे हैं? फैक्ट बता रहे हैं. She loves singing when she is alone. We met each other after a long time. So someone is stating or it is already written. Like fourth example, the sun is the biggest star in the universe. It is already written. It is already stated. No one can easily say, अपने मन की इच्छा से कोई नहीं कह सकता है. This is the fact that the sun is the biggest star in the universe. Fifth, she has planted some plants in my garden. Her behavior fascinates everyone. Full stop. Okay. Seventh, Alex play football every weekend. Too much sugar in the diet cause diabetes. So all these are the statements which are said by someone or it is already written or stated. Second type of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence that ask a question is called interrogative sentence. For example, so again interrogative, what do you understand by interrogative? This word is taken from the word interrogation. And where do you have read about interrogation? Usually police, CBIs do interrogation, means पूछताछ. हिंदी में you can say पूछताछ. तो उस वर्ड से वर्ड बना है interrogative sentence. एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पुट अप करता है
उसको कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. लेट्स सी एग्जाम्पल. सो बिफोर अगेन टेकिंग लुक टू एग्जाम्पल, येलो नोट आपके बिल्कुल स्क्रीन के सबसे नीचे है. वी पुट अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. मीन्स कौन सा होता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन? क्वेश्चन मार्क. जो पंक्चुएशन मार्क्स में से एक है क्वेश्चन मार्क, उसको कहेंगे इंटेरोगेशन मार्क, और यू कैन से क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ओनली ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पुट अप करते हैं, यू विल पुट क्वेश्चन मार्क एट आफ्टर दैट सेंटेंस. ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. वेयर आर यू गोइंग? Who is smoking at the door? Did she celebrate her birthday last year? Do you take exercise daily? So these all are question put up. It might be answer in yes or no, या different types of answers हो सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव सीन कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यू कैन आंसर दैम इन येस और नो, एंड सम आंसर्स यू विल सी दैट दे विल वेरी मीन्स अलग होंगे सबके. सो इफ़ आई टेक हु इज़ स्मोकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे आएगा माइट बी राम इज स्मोकिंग, और यू कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल इज स्मोकिंग, और यू कैन से नो वन इज स्मोकिंग. बट जो लास्ट डी एग्जाम्पल है, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, तो इसमें येस आएगा या तो नो आएगा. इसमें और कोई ऑप्शंस आप या आंसर्स वेरी नहीं कर सकते. सो डू यू टेक एक्सरसाइज डेली? येस आई विल टेक एक्सरसाइज डेली. या आप कहोगे नो आई डोंट टेक एक्सरसाइज डेली. सो लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट, वाई, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, वेयर एंड व्हेन, सॉरी. सो इट माइट बी रिटन बाय यूजिंग, यू कैन से 25th एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं, कांट वी बी फ्रेंड्स अगेन. तो आप ऐसे वर्ड्स भी सामने देखोगे सेंटेंसेस के. आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन, give 2 to 3 sentences, and then I'll ask कि identify between assertive sentences and interrogative sentences. First rule to find out the interrogative sentences, you will see is there any question mark, then you will see the words जो कि आप ब्लू में देख पा रहे हो. ओके, यू कैन फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेट कि ये आपको वर्ड्स सारे कहीं दिखाई दे रहे हैं. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल मोर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल 15. व्हेन डू यू इंटेंड टू मूव हेयर? हाउ काइंड ऑफ स्कूल डू यू वांट टू स्टडी एट? How did you get here alone? How do you manage to laugh like this? Whose birthday today? So 19th वाला जो आप एग्जाम्पल देखोगे, अगेन ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सिंगल वर्ड में आंसर दे सकते हो. Whose birthday today? So you can take so and so has birthday today. So let's take another look of 29th example. 29. What sort of nation might you want to live in? So this जो ये क्वेश्चन है, इसके अगेन आंसर्स डिफरेंट होंगे. सो व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंस एंड इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई, यू विल सी कि येस एंड नो आ रहा है क्वेश्चन, एंड इवन डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. दीज आर द वे यू कैन फाइंड आउट द interrogative sentences. So that's all for this video. We'll be doing next 3 types of sentences in next video. Thank you so much for listening. Do revise it and do listen it carefully. Thank you.